علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے۔ انسانی حقوق تنظیم بہاول نگر نے ایک بار پھر ٹھیکیداروں کی کرپشن کو بے نقاب کر دیا۔ تنظیم کے مطابق اسپیشل ایجوکیشن اسکول کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخ وقاص اقبال سے۔ جی وقاص۔ بالکل، ہم اس ٹائم موجود ہیں بہاول نگر نذیر کالونی میں، جہاں پر گونگے بہرے بچوں کے لیے اسپیشل ایجوکیشن سکول تو تعمیر کر دیا گیا، لیکن بلڈنگ کی ناقص مٹیریل کی وجہ سے یہاں کی جو دیوار ہے وہ کسی بھی وقت حادثے کا شکار ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے اس ٹائم یہاں کے علاقہ مکین، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور انسانی حقوق تنظیم کے پنجاب کے وائس چیئرمین یا مشتاق احمد جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی نشاندہی پہ آج پھر میڈیا کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں کے جو علاقہ مکین کا، ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، اے دیوار دیکھ لو، اے اندر جھکی پئی ہے، کسے ٹائم بھی ڈگ سکتی ہوا نال۔ اندر اے تقریباً 1.5 فٹ اندر اس ٹائم ہے، تسی جے ویڈیو تے ویکھ سکدے ہو۔ اور تواڈے واسطے گزارش ہے بھائی جان، اے کسے کوئی بچہ کسے دا بھی آ سکدا تھلے، ٹھیک ہے، احتیاط کرو۔ جیسا کہ آپ نے سنا، میرے ساتھ موجود تھے علاقہ مکین، ان کا کہنا کہ یہ دیوار کسی ٹائم بھی حادثے کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہاں پر گونگے بہرے بچوں کا سکول بنا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق تنظیم کے پنجاب کے وائس چیئرمین کے، ان کا کیا کہنا ہے، جن کی نشاندہی پہ آج پھر میڈیا کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم 2 دن پہلے وزٹ کیا تھا اسپیشل ایجوکیشن کا، تو جو بھی چیزیں تھی ناقص مٹیریل تھا ہر ایک چیز کا، تو اس کے بعد نشاندہی کسی دوست نے ہمیں فون کیا، آج ہم آئے ہیں جو بیک سائڈ والی نذیر کالونی والی اس کی ہے دیوار، وہ بالکل 2 سے 2.5 فٹ جو ہے وہ اندر جھکی ہوئی ہے، وہ کسی ٹائم ہی گر سکتی ہے، اور گونگے بہرے سکول ہے، نہ وہ بچے کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ کوئی بات کر سکتے ہیں، تو یہ کوئی حادثے کا شکار ہوگی۔ تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ڈی سی او بہاول نگر سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، کہ فی الفور اس کو ٹھیکیدار ہے جو رانا روف صاحب، آگے اس کا ٹھیکیدار ہے ناصر چوہان صاحب، فی الفور ان کو بلایا جائے اور دیوار جو ہے اس کو گرا کے دوبارہ اس کو نیا تعمیر کیا جائے، ورنہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ تو بہت مہربانی، شکریہ۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، میرے ساتھ موجود تھے اس ٹائم پنجاب کے وائس چیئرمین مشتاق احمد جو ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہاں کے اب جو لوگ ہیں، موجودہ لوگ، انہوں کی نشاندہی پہ آج پھر دوبارہ میڈیا کے ہمراہ یہاں پر نشاندہی کرنے کے لیے آئے ہیں کہ بہاول نگر ڈی سی ذوالفقار احمد بھون صاحب سے ریکویسٹ ہے، یہ غریب عوام اور یہ گونگے بہرے بچے جو یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں اسپیشل ایجوکیشن سکول میں، ان کے حوالے سے ان کی بلڈنگ میں جو ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے سابقہ ایم پی اے کے ٹھیکیداروں نے، تو ان کا فی الفور نوٹس لیا جائے اور اس دیوار کو گرا کر دوبارہ دیوار کی تعمیر کی جائے تاکہ بچوں کی جانوں کو محفوظ کیا جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شیخ وقاص، NTN نیوز، ڈسٹرکٹ رپورٹر بہاول نگر۔ میونسپل کمیٹی دنیا پور کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے سیوریج لائنیں عرصے دراز سے بند گندا پانی قبرستان میں چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے قبرستان کا تقدس پامال ہونے لگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں دنیا پور سے علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ دنیا پور میں میونسپل کمیٹی کی مبینہ غفلت کے باعث سیوریج کا نظام شدید مسائل کا شکار ہے۔ شہریوں کے مطابق عرصہ دراز سے سیوریج لائنوں کی صفائی نہ ہونے کے باعث گندا پانی سڑکوں پر کھڑا رہتا ہے، جس سے آمد و رفت اور روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے نیا سینٹری سپروائزر کے تعینات ہونے کے بعد سیوریج مسائل کے مستقل حل کی بجائے گندے پانی کا رخ قبرستان کی جانب موڑ دیا گیا ہے۔ مبینہ طور پر سڑک کے نیچے سے پائپ لائن گزار کا سیوریج کا پانی قبرستان میں چھوڑا جا رہا ہے، جس سے قبرستان کا تقدس متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ فاتحہ خوانی کے لیے آنے والے افرادوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کمشنر ملتان، ڈپٹی کمشنر لودھرا اور اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور فوری نوٹس لیتے ہوئے قبرستان میں چھوڑے جانے والے سیوریج کے پانی کا مسئلہ حل کریں، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ علی رضا، NTN نیوز، دنیا پور۔ تحصیل منشن آباد ضلع بہاول نگر کا مرکزی روڈ 3 ماہ قبل مکمل ہو چکا، مگر اب تک منشن آباد کے عوام کو الیکٹرک بسز کی سہولت فراہم نہیں کی جا سکی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ضلع بہاول نگر کی تمام تحصیلوں کے لیے الیکٹرک بسز کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن شہری آج بھی سہولت کے منتظر ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد آصف مغل سے۔ جی آصف۔ جو تحصیل منشن آباد ضلع بہاول نگر یہ مین روڈ ہے، یہاں پہ جتنے بھی شہروں کی الیکٹرک بسیں جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سارے ضلعوں کو دی ہیں، لیکن ہماری منشن آباد کی تحصیل کی بدقسمتی سمجھیں کہ ابھی تک یہ روڈ زیر تعمیر تھا، لیکن اس روڈ کو تقریباً 2-3 ماہ ہو چکے
तमीर इनकी मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन ये मिंचनाबाद वालों की बदकिस्मती है कि जो इलेक्ट्रिक बसें अभी तक नहीं चलाई गई। हमारे साथ यहाँ पे मकामी कुछ लोग मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक बस है अजे तक नहीं ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਮਫਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਣ। ਲੇਕਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਡ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਸਾਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਡੀ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ कि मेहरबानी करन इस रोड पे भी चलावन ते गरीबां दा फायदा हो जाए। हमारे साथ एक और मजदूर भाई मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो डेली भावनगर और मिंचनाबाद जाता है तो उनका कितना किराया लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो महंगा है, डीजल और महंगे की वजह होने के बावजूद जो उनके जो बसों वाले वैसे भी ओवर चार्ज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक बसें मरीम नवाज ने चलाई मिंचनाबाद रोड भावनगर पे, आप लोगों को क्यों नहीं सहूलत मिली? बस हमें नहीं मिली, हम काम पे जाते हैं, हमारी 1000 रुपये तनख्वाह है और दिहाड़ी है, तो 150 रुपये जाने का किराया लग जाता है, 150 रुपये वापसी का लग जाता है, 300 रुपये किराया लग 300 रुपये किराया लग जाता है, 700 रुपये हमें बचता है, तो हम उसका क्या करें। यहाँ पे जिस तरह लोग बता रहे थे, जो मजदूर है उसकी 1000 रुपये दिहाड़ी होती है और जो उसका 300 रुपये जो किराए में लग जाता है। जो पेट्रोल और पहले जो डीजल और पेट्रोल महंगे हैं और महंगे होने की वजह से जो ट्रांसपोर्ट में पहले किराया जो बहुत बढ़ाया हुआ है, तो हमारी गुजारिश है डीसीओ भावनगर और अब्दुल गफार कालू भट्टू साहब से कि जो मिंचनाबाद रोड ज़ेर तमीर था वो मुकम्मल हो चुका है। जो इलेक्ट्रिक बसों की सहूलत है जो मरीम नवाज साहब ने दी है वो जल्दी से जल्दी चलाई जाए ताकि गरीब आवाम को फायदा हो। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आसिम अव्वल, NTN न्यूज़, मिंचनाबाद। रेनाला खुर्द बाईपास नज़द आमिर मैरिज हॉल के करीब दिन दहाड़े मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकू दिन दहाड़े फैमिली से जेवरात नकदी लूट मार कर फरार हो रहे थे। मजीद अहवाल जान लेते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्ताक अहमद भट्टी से। जी मुश्ताक। जी बिल्कुल, रिनाला खुर्द नेशनल हाईवे पर CCD और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ। नेशनल हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया जबकि एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पे आपको बताता जाऊं कि 2 मुसल्लह डाकू एक फैमिली को रोककर लूट मार कर रहे थे और खवातीन से जेवरात छीन रहे थे कि उसी दौरान CCD की टीम मौका पर पहुंच गई। CCD को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई में एक डाकू मौका पर हलाक हो गया जबकि दूसरा डाकू फरार हो गया। बाद अज़ा CCD की भारी नफरी ने इलाके का मुहासरा करके फरार होने वाले डाकू का ताकुब किया। फायरिंग के तबादले के बाद दूसरा डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे मजीद कार्रवाई के लिए मुतलका इदारों के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू की शिनाख्त का अमल जारी है। मजीद पुलिस का कहना है कि वाक़े के हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही हैं। कैमरामैन टीम के साथ मुश्ताक अहमद भट्टी, NTN न्यूज़। JIU दीर लोअर के ज़ेर एहतमाम दरियाए पंचकोड़ा के किनारे यूथ समिट का इनेकाद, जिसमें नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अब्दुल्ला मदनी से। जी अब्दुल्ला। इस वक्त मैं लोअर दीर के तफरीही मकाम ख़जाना बाईपास पे दरियाए पंचकोड़ा के किनारे मौजूद हूँ। बारिश भी हुई है और जो बारिश के बाद गर्मी का ज़ोर भी टूट गया है। खुशकिस्मती से इस बेहतरीन मौसम से फ़ायदा उठाने की खातिर आज JIU ने नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए दरियाए पंचकोड़ा के किनारे एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया है। मकामी ज़िम्मेदार हमारे साथ मौजूद है। हसन साहब, बताइएगा आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद क्या था? आपके जलसा भी यहाँ पर मुनक़िद हुआ, मोटरसाइकिल रैली भी हुई, आज क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद 17 तारीख़ को जो हमारा ज़िमुशान जलसा हुआ था, इससे पहले एक टेम्पो क्रिएट करने के लिए हमने JIU के प्लेटफार्म से एक ज़बरदस्त मोटरसाइकिल रैली की थी, जिसमें हमारे ज़िला दीर लोअर के नौजवानों ने बड़े शानदार अंदाज से शिरकत की थी। और जो चैलेंज हमें दिया गया था अपर दीर के जलसे में, मेरी जमात ने जो हमें चैलेंज दी थी, हमने इसको कबूल किया था और प्रैक्टिकली हमने इसको साबित किया था। आज इन नौजवानों की एजाज़ में हमने ईद मिलन के नाम से एक ज़बरदस्त पार्टी का इनेकाद किया है इनकी हौसला अफजाई के लिए। और इसके साथ साथ चूँकि ये हमारा काम इसी जलसे पर अख्तिताम को नहीं पहुंचा है, आमिर जमात ने एक और टास्क हमें इस जलसे में दिया था, मेंबरशिप ड्राइव है हमारा, तो 80,000 मेंबर हमने बनाने हैं लोअर दीर में। इसी सिलसिले में आज हमने अपनी ज़िम्मेदारान को इकट्ठा किया है,
इनकी हौसला अफजाई भी की है और इसको साथ साथ ये टास्क दिया गया है कि 80,000 तो अमीरी जमात की जो है ना वो हदफ है, लेकिन इंशाल्लाह हम दिरलोर में 1 लाख तक जो है वो मेंबर बनाएंगे, इनको अपने साथ शामिल करेंगे और इंशाल्लाह एक मरतबा फिर से जो तरक्की का पाया जो जाम हो चुका है लोअर दीर के अंदर, इंशाल्लाह इसको हम फिर से जारी और सारे रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। जी नाजरीन, आपने सुना यहाँ पर तकरीब का इनेकाद जारी है। इनका यही कहना था कि 80,000 नए जो मेंबरान हैं उनको जमात इस्लामी में शामिल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरवकार लाए जाएंगे। जी सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त और सियाहत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने सिंध म्यूज़ियम में 2 रोज़ा गमनाक हुसैनी अदबी मेले का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर हैदराबाद फ़याज़ अब्बासी, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर मदद अली सिंधी समेत दीगर अदीब दानिश्वर इफ्तिताही तक़रीब में शरीक हुए। तफ़सीलात देखते हैं आकिल खान की इस रिपोर्ट। हैदराबाद में चौथा अदबी मेला शुरू कर दिया गया। सूफी फिक्र और रवादारी के फरोग के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इल्मी व अदबी नशिस्तें मुनक्किद की जाएंगी। इल्मी, अदबी और सकाफती सरगर्मियों के मरकज हैदराबाद में मारूफ सूफी शायर गुलाम रसूल शाह गमनाक हुसैनी की 4वीं बरसी के मौके पर चौथे गमनाक हुसैनी अदबी मेले का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया, जो 2 रोज तक जारी रहेगा। अदबी मेले का बाकायदा इफ्तिताह सिंध के वजीर बराए सखावत व सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने किया। हुसैनी साहब की आज 4थी बरसी के मौके पे यहाँ पे साईं इमदाद शाह की दावत पे मैं कमिश्नर हैदराबाद और दीगर आपने देखा यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स और हमारे जितने अदीब हैं, शायर हैं और हैदराबाद और पूरे सिंध से जितने भी नोटेबल्स हैं वो आए हुए हैं। इस मौके पर हैदराबाद की कमिश्नर फयाज हुसैन अब्बासी, सैयद इमदाद अली शाह बुखारी समेत मुख्तलिफ इल्मी, अदबी और सकाफती शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब का आगाज हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की वाई से किया गया, जिसे दरगाह भिट शाह की रागी फकीरी सैयद जुम्मन शाह ने पेश किया, जिसके बाद मेले के मुख्तलिफ सरगर्मियां बाकायदा आगाज किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि ऐसे अदबी मेले और सकाफती सरगर्मियां सिंध की सूफियाना रिवायत को उजागर करने के साथ साथ मोहब्बत और अमन और मजहबी रवादारी का पैगाम आम करती है। मौजूदा दौर में मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके तदराक के लिए सूफी शोरा और बुजुर्गों के इंसान दोस्त अफकार को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। मेले के दौरान मुख्तलिफ अदबी, फिक्री और सकाफती नशिस्तें मुनक्किद की जाएंगी, जबकि किताबों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। मेले के इख्तिताम पर रोज मौसीकी की महफिल सजाई जाएगी, जिसमें सिंध के मारूफ फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। कैमरा टीम के हमरा आकिल खान, NTN न्यूज़, हैदराबाद। सखर में सिंध जुडिशल एकेडमी और सिंध बार काउंसिल के इश्तराक से ABD लॉ कॉलेज सखर में नए वकला के लिए बार वोकेशनल कोर्स के तहत तरबियती सेशन मुनक़िद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान मोहन। सीनियर एडवोकेट और प्रिंसिपल अब्दुल फता समेजो लॉ कॉलेज ढेर की सलीम अख्तर मलक ने गैर कानूनी बेदखली एक्ट 2005 के मौज़ूआत पर तफसीली लेक्चर देते हुए शुरका को कानूनी तरीक़ाकार, अदालती निज़ाहिर और अमली कानूनी अमवार से आगाह किया। उन्होंने नौजवानों को वकला पर जोर दिया कि वो मुसलसल मुताल्ला, तहकीक, पेशा वाराना अखलाकियात और जदीद कानूनी टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करते हुए अपनी सलाहियतों से इजाफा करें। तरबियती सेक्शन में सखर और गिरदनवा से ताल्लुक़ रखने वाले नए वकला और कानून के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। Which define, because court, just like in this act there is word court, what is the court of sessions judge? Because if I will say file an application before the court, then where you have to file that application? The act define court, the court is a sessions court. The occupier, owners of immovable property from forceful, illegal dispossession. और ये this act is expedient remedy, which is very सेशन था। प्रिंसिपल जो आए थे घोटकी लॉ कॉलेज से, उनका बहुत ज़बरदस्त सेशन था ऑन द टॉपिक ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट एंड वी लर्नड अ लॉट। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक एक सेक्शन को समझाया और फिर क्वेश्चंस किए। मुख्तलिफ कानूनी अमवार पर सवालात के तकरीब में इख्तिताम पर सलीम अख्तर मलक और सिंध जुडिशनल अकेडमी के नुमाइंदा हक नवाज ने शुरका में नोट बुक्स और कानूनी कुतुब तकसीम किए। शुरका ने सिंध बार कौंसल और सिंध
जुडिशनल अकेडमी के इस मुस्बत इकदाम को सराहा। कैमरामैन टीम के साथ इमरान मुगल, NTN न्यूज़। अंधेर नगरी चौपट राज बहावल नगर में करप्शन के इल्ज़ामात एक बार फिर मौज़ूए बहस बन गए। तरक्याती मनसूबों के ठेकों और इनके मयार पर मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। बाज़ हल्कों की जानिब से ठेकेदार नासिर चौहान का नाम ज़ेरे बहस लाया जा रहा है। क्या तरक्याती मनसूबों में क़वाइद व ज़वाबित पर मुकम्मल अमल हो रहा है या कहीं बासर शख्सियात की सरपरस्ती और असर व रसूख भी किरदार अदा कर रहा है? मज़ीद जानते हैं शेख वक़ास इकबाल से। जी वक़ास, बताइएगा। अंधेर नगरी चौपट राज बहावल नगर में माफिया ने अपने जो पांव है वो ऐसे जमाए हैं कि हर ठेका ही एक ही ठेकेदार को मिलता है, जिसका नाम है नासिर चौहान। बहावल नगर में करप्शन के कई ऐसे वकूए हो चुके हैं जो महकमा बिल्डिंग के साथ मिलकर नासिर चौहान ने सर अंजाम दिए हैं। अभी हम इस टाइम मौजूद हैं बहावल नगर, जो नई सब्जी मंडी बनी है बाईपास पर। यहाँ आकर जब हमें इंसानी हकूक तंजीम के पंजाब के वाइस चेयरमैन मियां मुश्ताक अहमद जोया ने निशानदेही करवाई, मीडिया के हमरा यहाँ आकर देखा तो फिर मायूसी का सामना हुआ। मजीद हम जानते हैं वाइस चेयरमैन पंजाब मियां मुश्ताक अहमद जोया से कि इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज हमने विजिट किया सब्जी मंडी बाईपास, तो यहाँ पहुंचे हैं, ना तो इधर मस्जिद मुकम्मल है, ना वॉशरूम है पब्लिक के लिए कोई, ना कोई बैक साइड पे चार दीवारी है। और जो दुकानदार है आड़ती, उन्होंने एक दुकान अभी तक नहीं बनाई, वो फड़ के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। और जो मार्केट कमेटी वाले हैं, ये अंदर जो रेडी लगवाते हैं, फड़ी लगवाते हैं, उसका 1500 से 2500 रुपया डेली ले रहे हैं। और जब बार रोड पे कोई लगाता है तो उससे 1000 रुपया लेते हैं। तो टोटल मटेरियल जो है गलत लगा हुआ है, नाकस है। इस बहावल नगर शहर का साहब MP है राणा अब्दुल रऊफ साहब की सरपरस्ती में ठेकेदार है नासिर चौहान। वहाँ नासिर चौहान ही मिलता है, लेकिन काम जिधर ही जाते हैं काम नामुकम्मल है। और मेहरबानी करें, हम अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, DC बहावल नगर से, ये जल्द और जल्द सब्ज मंडी 2025 में मुकम्मल होनी थी, नहीं हुई, बिल्कुल इसको मुकम्मल करके उनके हैंड ओवर किया जाए। जी, जैसा कि आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे इंसानी हकूक तंजीम के पंजाब के वाइस चेयरमैन मियां मुश्ताक अहमद जोया। उनका कहना है क्या ठेकेदारों में सिर्फ एक ही नाम आता है नासिर चौहान का, जो ईमानदारी के साथ काम करता है। जहां पर भी जाएं तो इसकी करप्शन सरेआम नजर आती है। बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून से अपील है कि आया कि इसके अलावा बहावल नगर में कोई और ठेकेदार मौजूद नहीं है, या ये ठेकेदार अपने आला अफसरान की जेबें गर्म करने में मसरूफ है। ये सबके लिए एक सवालिया निशान है। कैमरामैन टीम के साथ शेख वकास, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, NTN न्यूज़, बहावल नगर। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।